Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed the exercises of Unit 6 of your English grammar book, that is nouns. And today I'm going to start with Unit 7, nouns, number. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 28. Students, take out your English grammar book and turn to page number 28 as I'm going to start with Unit 7, nouns, number. Now, what do you mean by nouns, number? Fine. Numbers means you can count. So today we are going to learn about countable nouns and uncountable nouns. Now, what do you mean by countable nouns? Nouns, those can be counted are counted nouns. Nouns which cannot be counted are uncountable nouns. Fine. Now, students, when we can clearly mention how many of the same kind of persons or things we are talking about, we place them in a group of countable nouns. है ना? For example, if I say 5 men, मैं अगर आपको एग्जाम्पल में लिख के देती हूँ 5 men, तो ये men क्या है? Men आपका क्या है? नाउन है. men नाउन है और ये 5 क्या है? नंबर. दैट मीन्स जिनको मैंने काउंट किया है. तो ये 5 men क्या हो गया? काउंटेबल नाउन. गॉट इट? देन इफ आई से 10 days, मैं 10 days बोल रही हूँ. 10 days, डेज आपका नाउन है और 10 मैंने काउंट करके बोला, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन्स. फाइन. इफ आई से 2 bricks, कितने ब्रिक्स हैं? ब्रिक्स तो नाउन है ना? ये तो सबको पता है. नाउन्स आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. और जहां नंबर्स हैं वो क्या है? काउंटेबल. तो काउंटेबल मीन्स वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ऑल दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, और जिनको हम नहीं काउंट कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. अब काउंटेबल नाउन्स में 1 tooth, अगर किसी का एक दांत है तो हम क्या बोलेंगे? 1 tooth. फाइन. 2 rupees, रुपीज आर काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो. 2 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 500 and so on. Then 6 sheets of paper. Fine. So nouns which can be counted are called countable nouns. Now students, there are some nouns which cannot be counted. अब जैसे we can't say 1 milk, हम ऐसे नहीं बोल सकते. 1 milk क्या हम बोल सकते हैं? मम्मी से give me 1 milk, give me 2 milk, है ना? give me 2 waters, give me many bread, है ना? हम these are uncountable nouns. हम ऐसे बोल सकते हैं a cup of milk, a glass of milk, a pot of milk, बट हम खाली milk को नहीं बोल. तो milk uncountable है. क्यों? क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते. फाइन. एंड जितने भी लिक्विड्स होते हैं बेटा, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. देन we say 2 glasses of water, 1 glass of water, 3 glasses of water, but we cannot count water. हम ग्लास को काउंट कर सकते. That's the reason we say 3 glasses of water. ठीक है. हम ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, बट हम बोलते हैं फॉर ब्रेकफास्ट मम्मी गिव मी 4 slices ऑफ ब्रेड, है ना? हम स्लाइस ऑफ ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, बट ब्रेड एक वो है पूरा, उसको नहीं का. हम स्लाइस ऑफ ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, हम लोफ ऑफ ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, बट हम खाली ब्रेड को नहीं काउंट कर सकते. फाइन. सो सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. Now the example of uncountable nouns are dust. घर में बहुत धूल आ गई है, डस्ट आ गई है. So can you count कि कितनी 1 dust है, 2 dust है, 100 dust है? We cannot count, है ना? तो फाइन पार्टिकल्स वाली चीजें जैसे शुगर है, राइस है, डस्ट है, these are all uncountable nouns. When you eat राइस, तो आप मम्मी से क्या बोलते हो? 1 राइस दो, 2 राइस दो, 1 चावल दो. नहीं, यू से give me a spoonful of rice, है ना? give me little rice, give me some rice, because rice is uncountable. Fine. So dust, money, paper, air, cement, rice, food, these are all uncountable nouns. Now, nouns that can be counted are called countable nouns, and काउंटेबल नाउन्स के बेटा सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जैसे 1 और मोर देन 1. ठीक है. रिमेंबर,
काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. वेयर एज नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड, नाउन्स जिनको हम नहीं काउंट कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मीन्स विच कैनॉट बी काउंटेड. एंड उन अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते. most of the uncountable nouns do not have plural forms. An uncountable noun, most important thing is, जो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, एक तो कि काउंटेबल नाउन्स के, मोस्ट ऑफ काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, उनके कोई प्लूरल फॉर्म, जैसे राइस को आप राइसेस नहीं लिखते, कभी लिखते हो? नो. वाटर को आप वाटर्स लिखते हो? नो. तो uncountable nouns, they do not have any plural form. Uncountable nouns का कोई भी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है. They do not have any plural forms. Fine. Then uncountable nouns को हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के जैसे ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आई गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, आप गोल्ड को नहीं काउंट कर सकते, बट गोल्ड की बैंगल है, गोल्ड का नेकलेस है, गोल्ड की इयररिंग है, उनको काउंट कर सकते हैं ना. गोल्ड से जो चीज बनी हुई है उस ज्वेलरी को काउंट कर सकते हो, बट वी कैन नॉट काउंट गोल्ड. जो अनकाउंटेबल नाउन होते बेटा उनको जनरली हम वे करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं. सो इफ आई राइट दिस सेंटेंस, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है. अब आप देखो, गोल्ड के लिए मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? इज, क्योंकि गोल्ड क्या अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं. देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है. मिल्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? इज. और इस किसके साथ लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो. तो जो अनकाउंटेबल है उनको जनरली सिंगुलर ट्रीट किया जाता है. क्लियर? एक तो अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते और उनको सिंगुलर, उनको हमेशा उनको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाता है? सिंगुलर. क्लियर? आई होप ये सबको याद रहेगा, है ना. सो अनकाउंटेबल नाउन्स रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स. इनको अनकाउंटेबल नाउन्स के हमेशा सिंगुलर वर्ब्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. फाइन. नाउ अब सपोज आप ब्रेड खाते हो, तो आप क्या बोलते हो? ब्रेड बासी हो जाती है, तो ब्रेड अगर ताजी है तो ब्रेड इज फ्रेश, है ना. आप ब्रेड आर फ्रेश नहीं बोलते हो, ठीक है. ब्रेड बासी हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? ब्रेड इज स्टेल. फाइन. तो ये ब्रेड अनकाउंटेबल है. स्लाइस ऑफ ब्रेड को काउंट कर सकते हो, लोफ ऑफ ब्रेड को काउंट कर सकते हो, बट सिंपल ब्रेड कैन नॉट बी काउंटेड. सो दे ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. क्लियर? व्हाई? बिकॉज इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं. नाउ लेट्स start with exercise 1 on page number 28. Write C for countable nouns and U for uncountable nouns. हमें सी काउंटेबल के लिए लिखना है
and U for uncountable nouns. Clear? Now the first noun is कॉफी. कॉफी क्या है बेटा? कॉफी को हम काउंट कर सकते हैं, कॉफी पाउडर? नो. सो इट इज अनकाउंटेबल. राइट यू इन द फर्स्ट लाइन. कॉफी इज अनकाउंटेबल, सो राइट यू. देन द सेकेंड नाउन इज टॉफी. टॉफी को तो आप काउंट कर सकते हो, बिकॉज रिमेंबर आपका बर्थडे आता है, सो यू काउंट कि आई हैव गॉट 50 classmates, so I need to take 50 toffees for my class. Fine. So toffees are countable, so we'll write C. Then the third one, brick. Brick मतलब ईंट. ईंट को तो काउंट करके ही खरीदा जाता है ना, कि हमको 500 ब्रिक्स चाहिए हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए. सो ब्रिक्स आर काउंटेबल, सो राइट सी. ब्रिक्स कैन बी काउंटेड, सो दे आर काउंटेबल. नाउ आइस क्यूब्स. अब देयर इज अ डिफरेंस. आइस क्यूब्स जानते हो ना, जो हम रेफ्रिजरेटर में ट्रे के अंदर आइस क्यूब्स, तो आप जब भी स्क्वैश बनाते हो, लेमनेड बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, so you say give me 2 ice cubes, give me 4 ice cubes, है ना. so ice cubes can be counted whereas ice cannot be counted. हम बर्फ को नहीं काउंट, आइस को नहीं काउंट कर सकते, but we can count the ice cubes, so they are countable. so write C. then cement. okay, cement is uncountable. बैग ऑफ सीमेंट इज काउंटेबल. सीमेंट की जो बोरी आती है ना, वो काउंट की जा सकती है कि हाँ देर आर 5 bags ऑफ सीमेंट या जो भी. बट सीमेंट इटसेल्फ वो पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट इज अनकाउंटेबल. क्लियर? देन द सिक्स्थ वन इज शुगर. शुगर क्रिस्प. शुगर is uncountable. Write U. Sugar uncountable है, so write U. Sugar आप टीस्पून ऑफ शुगर बोलते हो. गिव मी 1 teaspoon ऑफ शुगर, 2 teaspoon ऑफ शुगर, बट आप ये नहीं बोलते ना मुझे 1 sugar, 2 sugar, 3 sugar. नहीं. Either we say if somebody is baking half cup of sugar or something like that, or 1 teaspoon, 1 tablespoon of sugar, but sugar alone cannot be counted. So it is uncountable. Then the next one is coin. Coin can be counted. Coins को तो हम count कर सकते हैं. I've got 10 coins. I've got 5 coins. So coins are countable. Then oil. Oil, as I said, all the liquids are uncountable. अब आप देखते हो मम्मी जब ऑयल लेने जाती है ना, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी यूज करती है, तो शी परचेजेज इन लीटर. गिव मी 1 liter, 2 liter, 5 liters एंड सो ऑन. आपके जो फादर हैं वो जब कार में या बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, सो ही ऑल्सो बाइज दी पेट्रोल और डीजल इन लीटर्स. सो ऑयल इज अनकाउंटेबल. फाइन. यू मेजर ऑयल, you cannot count, so write U. Clear? Then countable. Clear? Then ninth is tea. Okay, जो चाय है, चाय को आप काउंट नहीं कर सकते. आप बोलते हो a cup of tea, a glass of tea, a mug of tea, but हम टी को नहीं काउंट कर सकते, तो it is uncountable. Then the 10th one, that is gold. I said gold, जितने भी metals हैं वो सब uncountable है. Gold, silver, copper, platinum, brass, all the metals are uncountable. Clear? Then the 11th word is cream. Cream again is uncountable, so write U. Then
12 earrings. I'm sure all the girls are fond of wearing earrings. So now you say I've got 2 pairs of earrings, 3 pairs of earrings. So earrings are countable, right? C. Earrings जो कान में पहने जाते हैं, those are earrings. Salt, नमक. Salt is uncountable, है ना? जितने भी powdered चीजें होती हैं, they all are uncountable. Fine. Then air, you cannot count air. Air is also uncountable. And the last one is ice. Ice cubes can be counted, whereas ice cannot be counted. So ice is uncountable. Fine. So with this, we have finished our exercise 1. Once again, I'll revise, children. Coffee, uncountable. Coffee को हम count नहीं कर सकते. We can say a cup of coffee, a mug of coffee. But coffee को हम count नहीं कर सकते. Toffee is countable. So we have written C. Bricks can be counted. So they are countable. Fourth, ice cubes. Ice cubes को हम count कर सकते हो कि आप मम्मी जब रेफ्रिजरेटर में आइस सेट करती है ट्रे के अंदर, तो यू से गिव मी 4 cubes of ice, 3 cubes of ice, whereas ice is uncountable and ice cubes are countable. एक ट्रे में कितने क्यूब्स हैं आप देख के गिन सकते हो कि there are 12 cubes or 16 cubes and so on. Cement is uncountable. Bag of cement can be counted, but cement alone is uncountable. जितने भी materials हैं, metal हैं, they are all uncountable. Then sugar, uncountable. Coin, countable. You can count. I've got 10 5 rupees coin. I've got 2 rupees coin. I've got 1 rupee coin. So coins can be counted. Oil is uncountable. जितने भी liquids हैं बेटा, they all are uncountable. Tea, coffee, again they are uncountable. Gold, metal, uncountable. Cream, uncountable. Earrings, you can count. I've got 3 pairs of earrings. I've got 4 pairs of earrings. Salt, uncountable. आप salt जब मम्मी यूज करती तो she uses a pinch of salt, a tablespoon of salt or teaspoon and so on. Because salt को तो हम 1 salt, 2 salt ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते. Then air, it is uncountable, and ice, it is uncountable. Ice cubes can be counted, but ice cannot be counted. Fine. So with this, we have finished our first exercise, which was based on countable and uncountable nouns. Fine. Now I'm going to start with singular and plural. Now, singular and plural. You already know that a noun that refers to one thing or one person is said to be singular in number. ये तो सबको पता है कि singular noun क्या होता है. कोई एक person, एक thing, एक animal को हम singular noun बोलते हैं. Fine. Example: child, man, lady, goose, bird, etc. One person, animal or thing is known as singular noun. And a noun that refers to more than one thing or person, और एक noun कोई एक thing या एक person या एक animal से ज़्यादा को refer करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? We call it plural noun. Example. Now let's look at some examples. Singular and plural के हम कुछ examples आपको दिखाते हैं. Singular nouns and plural noun. Singular refers to one. Singular child. Plural क्या हो जाता है? Children. है ना? Then men, one man, and men, more than one man. ठीक? Then goose refers to one. Geese refers to more than one. So I hope अभी ये तो singular plural तो सबको पता है.
Now we are going to learn about the rules, how to form plural forms. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि हमें ये पता है सिंगुलर रिफर करता है वन पर्सन और वन थिंग को, वेर एज प्लूरल रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रूल्स. अब हम रूल्स पढ़ेंगे. डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स कैसे बनते हैं. नाउ वी नीड टू नो द रूल्स. So, the first rule of singular and plural noun. Fine. The first rule is most of the singular nouns form their plurals by adding s at the end. What does this rule says? This rule says that most of the singular noun, बेटा जो मैक्सिमम सिंगुलर नाउन्स हैं उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है. दे एड एस एट द एंड. उनके एंड में हम एस लगाते हैं. फाइन. नाउ लेट्स लुक एट दिस. Now, the examples are bed. B-E-D, bed means one. अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा. We simply add s at the end. अब इसके एंड में हमने क्या ऐड कर दिया. s ऐड कर दिया. तो ये क्या हो गया. बेड्स. कैसे बेड्स फॉर्म हुआ. by adding s at the end of the word. So this is what. This is the plural form of bed. The second word is rose. रोज का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे. वील एड एस एट द एंड. तो क्या हो गया. रोजेस. देन दी थर्ड वन डोर. डोर का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे. वील एड एस एट द एंड. क्या हो जाएगा. डोर्स. देन the fourth one word is house. हाउस के एंड में क्या ऐड करेंगे कि प्लूरल हो जाएगा. हाउस. एस. तो हो जाएगा हाउसेस. फाइन. सो you can see that how the plurals of most of the nouns are formed by adding s at the end of the word. Then the next example is bus. We'll add not bus, we'll write brick. Let's write bricks. हमने क्या ऐड कर दिया. bricks. Then the next one is ears. ear. क्या हमने एंड में क्या कर दिया. years. more example. let's say month. क्या ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए. months. s. so you can see how we have made the plurals by adding s at the end of the noun to make it plural. fine. तो फर्स्ट रूल क्या है. most of the singular nouns form their plurals by adding s at the end. जो most singular nouns हैं वो अपना प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं. एंड में हम क्या ऐड करते हैं. एस ऐड करते हैं. फाइन. बेड का बेड्स. क्या ऐड किया हमने बेड में. एस. बीईडी बेड. बीईडी एस. रोज. आरओएसई रोज.
वी हैव एडेड एस, तो क्या हो जाएगा? रोजेस. डोर, वी हैव एडेड एस, क्या हो गया? डोर्स. हाउस, क्या हमने ऐड किया? एस, हाउसेस. ब्रिक, ब्रिक्स. ईयर, years. Month, months. So most of the singular nouns form their plurals by adding s at the end. I hope ये rule सबको समझ में आ गया होगा. Now, अब I'm going to start with the second rule. Now rule number 2. Nouns that end in मतलब जिनकी स्पेलिंग के एंड में CH, SH, S, double S and X form their plurals by adding es at the end. उनके एंड में हमको क्या यूज करना है? es. अभी हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा कि मोस्ट के एंड में हमको क्या ऐड करना है? s ऐड करना है टू फॉर्म दी प्लूरल्स. और इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो वर्ड्स जिनके एंड में ch हो, SH हो, S हो, डबल S हो या X हो, तो उनके प्लूरल्स फॉर्म करने के लिए हम उनके एंड में ES ऐड करेंगे. फाइन. सो नाउ लुक एट दी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वर्ड इज बंच. बंच के एंड में क्या है? CH है. ठीक है, BUNCH. सो टू फॉर्म दी प्लूरल हम क्या करेंगे? हम इसमें एंड में ES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बंचेस. सो अभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां पे CH आएगा इनमें, वहां पे उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमको उसमें ES लगाना है. देन चर्च. चर्च के एंड में क्या है? CH है. सो टू फॉर्म द प्लूरल व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऐड ES टू द वर्ड चर्च. तो क्या हो जाएगा? चर्चेस. प्लूरल हो गया. देन the third example is bush. BUSH. It has got SH at the end. So to form the plural, what do we need to do? We need to add ES to the word bush to make it plural. Then the next word is dish. What are we going to add? We are going to add ES. So क्या हो गया? Dishes. So आपने देखा यहाँ क्या लिखा है? CH जिसके एंड में हो, SH जिसके एंड में हो, S जिसके एंड में हो, डबल S जिसके एंड में हो या X हो, तो उनके प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उसमें ES लगाएंगे. फाइन. Now the fifth one. Look at the word dress. अब ड्रेस में देखो लास्ट में क्या है? डबल एस है. डबल एस है तो हम क्या इसमें ऐड करेंगे टू मेक इट प्लूरल? ES. क्या हो जाएगा? ड्रेसेस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्लास. क्लास में डबल एस है, हम क्या ऐड करेंगे इसमें? ES. क्या हो जाएगा? क्लासेस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज बॉक्स.
बॉक्स में लास्ट में एस एच है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे ई एस, तो क्या हो जाएगा बॉक्सेस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फॉक्स. फॉक्स में क्या है एक्स है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे ई एस टू मेक इट प्लूरल. देन दी नेक्स्ट वन बस. बस की स्पेलिंग में क्या है लास्ट में एस है, एस भी है. सो बस का क्या हो जाएगा, बस में हम क्या ऐड करेंगे ई एस टू मेक इट प्लूरल. फाइन. सो आई होप नाउ this is very clear to you. The nouns whose got in the end ch, sh, s, double s and x form their plurals by adding es. उनके end में हमको क्या ऐड करना है es. Clear? So now students please learn these rules. जो rules मैं ऊपर लिख रही हूँ ये आपको rules learn करने पड़ेंगे to form the plurals correctly. So that's all for today, students. Do learn and revise all the taught exercise and the 2 rules which I have taught today for forming plurals. And I'll be continuing this exercise in my next video. Till then, please learn and revise the taught exercise. Thank you, students. Good day ahead.